Hi everyone, good morning. जीआईसी जयंती कोड आप तो बच्चे कल भी आए थे ना। और ऊपर जीआईसी माइक ले लो बच्चे कोई भी एक। हेलो गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, आपका क्या नाम है? विशाखा तोमर। विशाखा। आप आज आपकी पहली क्लास है? यस मैम। ओके, तो हम लोग ना आज वो पढ़ेंगे, मतलब आज अभी ना कल भी हमने एक्टिविटीज करी थी और अभी 3 दिन हमारी एक्टिविटीज ही चलेंगी। मतलब ऐसे ये जो सब चीजें मैं आपको वीडियोस में दिखा रही हूँ, बाकी जो बच्चे हैं जो रोज आ रहे थे, द क्लासेस स्टार्टेड फ्रॉम 5th ऑनवर्ड्स। तो जो बाकी सारे बच्चे हैं उन्होंने दे हैव लर्नड इट इन थ्योरी। जिन लोगों ने नहीं किया है, दीज वीडियोस हैव थ्योरी आल्सो एज वेल एज वी डू एक्टिविटीज इन क्लास। ठीक है, तो इसमें जो जो आपको दिखाया जाएगा ना उसके बाद हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप सब में पूछ लेना, ठीक है, चैट बॉक्स से पूछ लेना। ओके, यस मैम। ऑलराइट। ओके एवरीवन, आज ना हम लोग लाइक वी डिड अर्लियर, लाइक वी डिड यस्टरडे, कि हमने कुछ कुछ एक्टिविटीज करी थी, आज भी हम लोग कुछ एक्टिविटीज करेंगे। टुडे विल लर्न सब्जेक्ट मैटर। मतलब कैसे, मतलब कौन कौन सी जो एंटिटीज होती हैं उनके साथ कौन कौन से वर्ड यूज करने होते हैं, दिस एंड दैट। वी हैव बीन लर्निंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम। The whole theory is covered, sentences is covered, word transformation is covered. Now we are just learning by the videos कि इसको practical जब आपकी वो होती है ना, कोई conversation होती है, we are learning the examples। तो उसमें आप conversation कैसे करते हो और कौन से words कहाँ use करने होते हैं। ठीक है, आप वीडियोस देख लो और उसके बाद we will discuss it. If you have any doubt, you let me know through the chat box. All right? Okay, I'll play the video for you. Welcome to the learning activity 1 and many. This activity covers count and non-count nouns, singular and plural forms of count and non-count nouns, expressions for quantity, a, an, numbers, many, much, some, lots of, questions using is there, are there, some, and any. Expressions using have got, haven't got. Questions about quantity, how much, how many. Names of the things we see around us are called nouns. Nouns can be classified into count nouns and non-count nouns. Nouns that can be counted and that have a plural form are called count nouns. For example, tree, stone, apple, book. The plural forms of these nouns are trees, stones, apples, and books. Nouns that do not have a plural form and that are counted by adding another noun to them are called non-count nouns. For example, water, rice, or cement. These nouns do not have a plural form. We do not say rices, waters, or cements. Instead, we say a kilogram of rice, glasses of water, or bags of cement. Look at this picture of a construction site and read the names of the things present there. Can you classify these things into count nouns and non-count nouns? Click the button to know which things are count nouns and which are non-count nouns. Let's learn about the singular and plural forms of count nouns. If a count noun has a consonant sound, we use a with its singular form. For example, a tree, a stone, a book. If a count noun has a vowel sound, we use an with its singular form. For example, an apple, an egg, an ice cream cone, an orange, an umbrella. Note that the letters A, E, I, O, and U are vowels. All other letters of the alphabet are consonants. For the plural form of a count noun, we add an S, ES, or IES to the word. For example, tree, trees, apple, apples, glass, glasses, baby, babies. Sometimes the plural form does not include S, ES, or IES.
For example, the plural of man is not mans but men. The plural of child is children. Let's learn the singular and plural form of non-count nouns. Non-count nouns are already singular in form, so we do not use a with them. For example, it is incorrect to say a water, a wood, or a paint. If we use a, we need to use a count noun with a non-count noun. For example, a glass of water, a plank of wood, a bucket of paint. For the plural form, we simply use the plural of the noun we added to the non-count noun. So, the plural of a glass of water would be glasses of water. The plural of a plank of wood would be planks of wood. And the plural of a bucket of paint would be buckets of paint. Note that the form of non-count nouns, water, wood, and paint, did not change. The nouns remained in the singular form because they do not have a plural form. How do we talk about the quantity of count and non-count nouns? If we know their exact quantity, we can use numbers with the singular and plural forms of count nouns. For example, there is 1 tree in the garden, or there are 50 bricks in the truck. We do not use numbers with non-count nouns. For example, it is incorrect to say there are 3 cements, but we can say there is 1 bag of cement or there are 3 bags of cement. Note that we use there is to talk about count nouns in the singular form and there are to talk about count nouns in the plural form. With non-count nouns, we use there is. For example, there is cement on the floor. We can use some to refer to both count and non-count nouns if we do not know the exact number of things but know that the quantity is little. For example, there are some trees or there is some cement. We can also say there are some bags of cement. If the quantity is large, we can use a lot of with both count and non-count nouns. For example, there are a lot of bricks or there is a lot of cement. Note that to talk about the quantity of count nouns, we use there are with some and a lot of. However, with non-count nouns, we use there is with some and even with a lot of. For example, there is a lot of cement. This is because non-count nouns are singular in form. We can use much and many to talk about quantity if things are large in number, but their exact quantity is not known. We use many with count nouns. For example, there are many stones here, or there are many people. We can also say there are many bags of cement. We use much with non-count nouns. For example, there is much cement left. Note that we use there are with many to talk about the quantity of count nouns, and we use there is with much to talk about the quantity of non-count nouns. We have learned to refer to objects using their singular and plural forms. Now, let's learn to ask questions using is, there, and are there. We use is there a to ask a question about a count noun in the singular form. For example, is there a ladder? We use are there with some and any to ask questions about count nouns in the plural form. For example, are there any bricks? Are there some cement bags? We use is there with some and any to ask questions about non-count nouns. For example, is there some wood? Is there any water? Note that we use both is there and are there with count nouns, but we use only is there with non-count nouns. Let's learn to use a, some, a lot of, and any with the expressions have got and haven't got. For a count noun in the singular form, we use have got a and haven't got a. For example, I have got a painting for this wall, but I haven't got a lampshade. For a count noun in the plural form, we use have got with some and a lot of. For example, they have got some paintings or they have got a lot of curtains for the house. We use haven't got with Okay, everyone, what we can do is see, Ismina, there is a lot of content.
और मतलब हमने ना एक काम करते हैं, हम लोग एक 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 करके पोर्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, रादर देन इस वीडियो को सुनना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को, मेरी आवाज आ रही है पहले बताओ, हैंड रेज करना है एक बार, मेरी आवाज आ रही है तो। ओके, ऑल राइट। सो देखो क्या होगा ना, आप इस वीडियो को बिना समझे देखोगे तो मतलब यूजुअली एक आइडिया लग जाता है चीजों का, बट बहुत सारे बच्चे जिनका पहला या दूसरा क्लास है, और अगर आप पूरे वीडियो को ऑन अ स्ट्रेच देखोगे, एक साथ देखोगे, तो आपको ना इतना ज्यादा क्लियर कुछ नहीं होगा, आप कंफ्यूज और हो जाओगे। तो एक काम करते हैं, पोर्शन बाय पोर्शन इसको समझते हैं, ठीक है। बेसिकली द होल वीडियो इज अबाउट नाउन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, ये सबको पता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। हैंड रेज करना किस किसको पता था पहले से। नाउन्स तो सबको पता है, राइट। संज्ञा, काउंटेबल होता है और नॉन काउंटेबल होता है। सो नाउन इज जो भी हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये तो सबको पता है ना। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी प्लेस, नेम, एनिमल और थिंग, दैट इज कॉल्ड एज नाउन। एंड नाउन मतलब जो भी आपका चेयर, टेबल, जो भी चीज आप किसी जगह को बोलने के लिए, किसी का नाम, कोई जगह, नेम, प्लेस, ऑब्जेक्ट, कोई लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और पर्सन, इन सब चीजों को बोलने के लिए आप जो वर्ड्स यूज करते हो वो आपके नाउन्स होते हैं। इसको लिख लो एक बारी अपने नोटबुक्स पे, एक बार लिख लो। नाउन इज नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिनोट नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। वेट, names of the things we see around us are known as nouns. Names of the things, और things में लिख लेना name, place, animal, thing, सब कुछ। Words that are used to decide the names of the things we see around us are called nouns. Nouns can be classified into count nouns and non-countable and non-countable nouns. ठीक है? Nouns are the words used for name, place, animal and thing. So nouns can be classified into two, that is your countable nouns and your non-countable nouns. ठीक है? Countable nouns are the nouns that can be counted. जैसे example, trees हैं, आप trees को count कर सकते हो, right? आपके पास pair of clothes हैं, उनको आप count कर सकते हो। Classroom में chair पड़ी है, that you can count. But non-count noun is your water. You cannot count water. It's your stars. You cannot count the stars. It's your hair. You cannot count the hair. So these are your non-countable nouns. ठीक है? Countable nouns होते हैं जिन्हें आप count कर सकते हो। जैसे if there is a park, उसके जो trees हैं वो आप count कर सकते हो। But अगर वहाँ पे जो park है उसमें soil है या sand है, वो आप count नहीं कर सकते। ठीक है? So that is the difference between countable and non-countable nouns. Alright, if we move ahead. Okay, now we will learn about the singular and plural form of count noun. What is singular and plural form? GIC Jayanti Court. Good Hello, morning, good ma'am. morning. Good morning. आपका क्या नाम है? My name is Bhavna. भावना, ओके भावना। आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्या होती है? सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स क्या होती है? कुछ भी आइडिया है सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं? मैम एक वचन और अगर बहुवचन। एक वचन और बहुवचन होता है शायद। कोई एक वस्तु के लिए एक वचन, जब बहुत सारे होते हैं तो बहुवचन। Yes, right. So this is what we have learned. But अभी ये spoken English का class है, तो we will try to learn it in Hindi as well, English as well. So आपका एक वचन is singular noun and आपका बहुवचन is your plural noun. ठीक है? जब there is any object, place, name or thing which is one. ठीक है? जैसे one chair, a table. This is singular. But if there is one से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा चीजें हैं जिनके बारे में बात हो रही है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, whether it is verbal communication
और लाइक योर रिटन कम्युनिकेशन, उसमें अगर दो या दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही है तो दैट इज प्लूरल। एंड फॉर प्लूरल यू यूज, अभी हम पढ़ेंगे। तो देखो, अगर सिंगुलर और प्लूरल में इफ अ काउंट नाउन, आप बैठ जाओ भावना, थैंक यू सो मच। If a count noun has a consonant sound, we use a with its singular form. तो अभी हम सिंगुलर फॉर्म की बात करेंगे, फिर हम प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन में देखो, नाउन क्या होता है, जो लेटर्स हैं हमारे, जो अल्फाबेट्स हैं A to Z, उसमें देयर आर कॉन्सोनेंट्स, जो वर्ड्स हैं दे आर कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स। Consonants and vowels are your two classifications. Your vowels are GIC Pokhar. GIC Pokhar, take the mic. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। आपको पता है कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स तो पता है कॉन्सोनेंट होते स्वर हैं। और ओके, ऑलराइट, बताओ। देखो, वॉवल्स अगर आपने इंग्लिश अल्फाबेट्स में पढ़ा होगा और ये आपके चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, वॉवल्स आर योर AEIOU। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आपके जो भी वर्ड्स हैं किसी भी जगह के, वॉवल्स लिख लो एक बार, सारे बच्चे लिख लो अपने नोटबुक पे। वॉवल्स आर योर AEIOU, ये वॉवल्स है। आपके ABCD जो होती है ना, उसमें A to Z आपके अल्फाबेट्स होते हैं। उन A to Z अल्फाबेट्स में से AEIOU आर योर वॉवल्स और बाकी सारे अल्फाबेट्स आर योर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इज कि कहीं पे भी, दिस इज अ रूल ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड वर्बल, बोथ वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन। ये रूल है कि अगर आपका लेटर्स AEIOU है, अगर AEIOU लेटर्स हैं, तो वॉवल्स जो आपके हैं उसके पीछे आप एन लगाओगे, उसके पीछे आप कभी ए यूज नहीं करोगे, ठीक है। किस किस को समझ आया, हैंड रेज करो। गुड। बट ऐसे नाम में नहीं लगाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी का नाम आकाश है तो तुम एन आकाश बोलने लग जाओ। नाम में नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज दिस वॉवल्स। अगर कोई भी वॉवल है, इफ अ काउंट नाउन हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड, वी यूज ए आर विद इट्स सिंगुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अ ट्री, अ बुक, अ ग्लास ऑफ वाटर। If it has a vowel sound, like apple, egg, ice cream, orange, and umbrella. So apple is an apple. Okay? Umbrella will be an umbrella. Because उसकी जो starting की जो ये है, alphabet है, that is A, E, I, O and U. तो जहां पे भी आपका AEIOU आएगा, वहां पे आप वॉवल्स, क्योंकि वो वॉवल्स है तो आप एन यूज करोगे, ठीक है। सब कुछ डिफरेंस समझ आया? कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के बीच में डिफरेंस समझ आया? कोई है जिसको समझ नहीं आया है कि कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स क्या होते हैं और उनको यूज कैसे करना है? कोई भी, एनीवन, मैं दोबारा समझा दूंगी, मुझे बता दो अगर किसी को समझ नहीं आया तो। कोई है, सबको क्लियर है? मैम कॉन्सोनेंट के बारे में बता दो। कॉन्सोनेंट्स के बारे में बच्चे, आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता। ओके, अनीता, देखो बहुत सिंपल है। ABCD पता है ना कि A to Z होता है ABCD? यस मैम। ओके, चलो ABCD सुना दो मुझे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। एग्जैक्टली, गुड। सो अब इन ABCD में ना, जो AEIOU, ये जो अल्फाबेट्स है, AEIOU 5 अल्फाबेट्स है, ये आपके वॉवल्स हैं, ठीक है। मुझे पता है इंग्लिश के बहुत स्टूपिड रूल्स होते हैं, आई डोंट नो कौन बनाता है, कोई जरूरत नहीं थी इस चीज की, बट फिर भी बना है तो नाउ वी हैव टू फॉलो इट बिकॉज वी हैव टू स्पीक इन करेक्ट इंग्लिश, ठीक है।
इंग्लिश बोलना है तो आप करेक्ट ही बोलेंगे, ऑब्वियसली, राइट? बिकॉज इफ यू डोंट स्पीक इन करेक्ट इंग्लिश देन इट विल अफेक्ट आवर कॉन्फिडेंस, विच इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ अस, ठीक है? तो दैट इज द रीजन कि हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब मुझे नहीं पता किसने ये स्टूपिड सा रूल बनाया, बट आपके ए ई आई ओ यू वॉवल्स है। वॉवल्स के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स बचे ना ए टू जेड में, अभी जो आपने मुझे ए टू जेड सुनाया है, उसमें जितने भी अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू के अलावा बचे वो आपके कॉन्सोनेंट्स है। अगर उन वर्ड से कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम स्टार्ट हो रहा है तो उनमें आप सिंपल आ लगाओगे। अगर ए ई आई ओ यू से किसी का स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आप एन लगाओगे। अगेन इट इज फॉर ऑब्जेक्ट्स। आपका नाम अनीता है तो एन अनीता नहीं हो जाएगा, ठीक है? अनीता ही रहेगा। और अगर आप अम्ब्रेला बोलोगे तो आप एन अम्ब्रेला बोलोगे, आप अ अम्ब्रेला नहीं बोलोगे, ठीक है? क्योंकि वो उसका जो वर्ड है अम्ब्रेला, उसका स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है? मैम मैम रिपीट अम्ब्रेला का करें। स्टार्ट, बच्चे अम्ब्रेला जो है वर्ड है ना, अम्ब्रेला ऑब्जेक्ट है अम्ब्रेला, उसका फर्स्ट वो स्टार्ट कैसे हो रही है, स्पेलिंग स्टार्ट कैसे हो रही है? यू से। यू से हो रही है, और यू हमारा वोवल है, राइट? इसीलिए हम यू के आगे यस मैम। एन लगाएंगे, ठीक है? यस मैम। ओके। और अगर ट्री है तो ट्री किससे स्टार्ट हो रहा है? टी से, राइट? और ट्री में ट्री और टी जो है वो तो वोवल नहीं है, वो तो कॉन्सोनेंट है ना? यस मैम। इसीलिए हम टी के आगे और ट्री बोलते हैं, हम एन ट्री नहीं बोलते, ठीक है? अभी क्लियर है? यस मैम। ओके, बैठो। थैंक यू। ठीक है, अभी सबको समझ आ गया। अगर ए ई आई ओ यू है तो आप हमेशा एन लगाओगे। इट विल बी एन अम्ब्रेला, इट विल बी एन आइसक्रीम, ठीक है? एंड इट विल बी एन एग। हो गया सिंगुलर फॉर्म की बात, कि एक 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 की बात चल रही है। अब फॉर द प्लूरल फॉर्म ऑफ अ काउंट नाउन वी एड एन एस, ई एस और आई ई एस टू द वर्ड। ये एक बार नोट कर लो। For the plural form of the count noun, we add an S, ES or IES. For the plural form of a count noun, count noun मतलब वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके प्लूरल फॉर्म के लिए, उनके सिंगुलर फॉर्म के लिए तो हमने देख लिया कि हम कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स के साथ हाउ वी प्ले अराउंड कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स, ठीक है? नाउ फॉर द प्लूरल फॉर्म ऑफ अ काउंट नाउन वी एड एस, ई एस और आई ई एस टू द वर्ड। इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? हैंड रेज करना एक बार। ओके, ऑल राइट। सो फॉर द प्लूरल फॉर्म ऑफ काउंट नाउन वी एड एन एस, ई एस और आई ई एस। ये हमने, अगर आपको याद होगा तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई प्लूरल नाउन है, अगर प्लूरल है तो उसमें ऑलरेडी एस लग जाता है। योर ट्री, ट्री का प्लूरल विल बी ट्रीज। ग्लास का विल बी ग्लासेस, ठीक है? अब देखो, जैसे हमने पहले रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स पढ़ा था, है ना? जीआईसी पोखर याद है? रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स पढ़ा था। यस मैम। हाँ, तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में तुम आजकल अभी जब अगर तुम हंसते नहीं हो ना तो मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम तीनों हंसते रहो, डे वन से लोग हंसी रहे स्क्रीन पे पूरा पूरा टाइम। अच्छा ठीक है, सुनो। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ तो रेगुलर सेंटेंसेस होते हैं। हमने पास्ट टेंस में पढ़ा था रेगुलर और इरेगुलर, है ना अनिता? यस मैम। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था कि कुछ तो रेगुलर वर्ब्स होते हैं जो पैटर्न फॉलो करते हैं कि उनमें ईडी 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 लगा दो तो वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्ले, प्लेड, वॉक, वॉक्ड, है ना? बट कुछ रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स होते थे जिनको, जो पैटर्न फॉलो नहीं करते थे। जैसे ईट का एट हो जाता था, वेयर का वॉन हो जाता था, ठीक है? रैन का रन होता था। वैसे यहाँ पे भी है। फॉर द प्लूरल फॉर्म कुछ तो वर्ड है जो पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसमें आप एस, ई एस और आई ई एस लगा दो तो वो प्लूरल बन जाएंगे। बट कुछ है
जो ये फॉलो नहीं करते. समटाइम्स द प्लूरल फॉर्म डज नॉट इंक्लूड एस, ई एस और आई ई एस. फॉर एग्जाम्पल प्लूरल जो मैन का होता है, सारे बच्चे इसको नोट कर लो, बहुत लोग होते हैं, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, नॉट जस्ट स्टूडेंट, बट ऑल्सो बड़े लोगों को भी मैंने ये मिस्टेक करते हुए देखा है. विमेन जो मैन होता है, मैन, MAN, MAN, मैन इज योर सिंगुलर मैन, एक आदमी की बात हो रही है. एंड MEN is your plural. It's man and men. अमिता मुझे बोल के दिखाओ. सिंगुलर इज, सिंगुलर इज प्लूरल. अरे सिंगुलर में मैन को कैसे बोलते हैं? MAN इज. मैम रिपीट करो. हाँ, एक बार रिपीट करो. ओके. ये सारे बच्चे ना इसको नोट कर लो, ठीक है? इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं. MAN जब ए लगता है तो वो सिंगुलर होता है, मतलब एक मैन की बात हो रही है. और MEN जब ई लगता है तो प्लूरल बात हो रही होती है. MAN इज एक मैन एंड MEN इज मैन, मैन और मैन. ठीक है, सिंगुलर प्लूरल. वैसे ही विमेन, विमेन जब बोलेंगे तो बहुत सारी विमेन की बात हो रही है, उसमें WOMEN यूज होगा. और वुमेन, मैं करके जो साउंड आ रही है ना, चेंजेस समझ आ रहे हैं मैन और मेन में? आया? यस मैम. अब आया समझ? हरकतें करनी होती है तुम्हारे समझाने के लिए, ठीक है? द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन इज नॉट मैन्स. मैन्स कोई नहीं बोलेगा या वुमेन्स कोई नहीं बोलेगा. इट्स मैन एंड मेन. अब बोलो, सिंगुलर फॉर्म इज मैन. एंड प्लूरल इज मैन. मेन. मैन. मेन. मैन. मैन तो सिंगुलर है. मेन. मैन. मेन, हाँ. मैन, मेन. Women is plural. Woman is your singular. Okay? Just like that, plural form of child. Child is singular. तो उसका plural form childs नहीं होगा. ठीक है? कोई ऐसा childs नहीं बोलेगा. There are so many childs. किसी ने ऐसे, मैं किसी को बोलते हुए देखा ऐसा तो मैं बहुत डांटूंगी. It's children. ठीक है? It's children. अब देखो, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नॉन काउंट नाउन. अब देखो, अगर वो है सिंगुलर, जो नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ तो हम सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि दे आर नॉन काउंटेबल. नॉन काउंट जो चीज अनगिनत है उसके साथ हम कैसे बोल सकते हैं कि एक है या एक से ज्यादा है ना? अगर स्टार्स हैं तो स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम उनको 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार तो बोल नहीं सकते. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन काउंट नाउन्स आर ऑलरेडी सिंगुलर इन फॉर्म, सो वी डू नॉट यूज अ विद देम. नॉन काउंट नाउन्स आर ऑलरेडी सिंगुलर, इसको नोट कर लो. नॉन काउंट नाउन्स आर ऑलरेडी सिंगुलर. जैसे आपके हेयर हैं, आप हेयर्स नहीं बोलते. पहले हम बोलते थे हेयर, फिर इंग्लिश जो रूल्स बनाते हैं उनके दिमाग में कुछ तो आया कि उन्होंने सोचा अब हेयर्स नहीं बोलेंगे, तो हेयर्स कोई नहीं बोलेगा. ठीक है? हेयर, हेयर, बस एस नहीं लगेगा हेयर्स में. सिर्फ हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता है. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जब बोलते हो ना तो आप मिस्टेक करते हो. तो इसीलिए विमेन प्लूरल, मैन सिंगुलर, ई, हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है. ओके, ठीक है? नॉन काउंट नाउन्स आर ऑलरेडी सिंगुलर इन फॉर्म, सो वी डू नॉट यूज ए विद देम, क्योंकि हम सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे थे या ए यूज कर रहे थे. बट सिंस नॉन प्लूरल, नॉन काउंटेबल नाउन्स आर ऑलरेडी सिंगुलर इन फॉर्म, वी डू नॉट यूज ए विद देम. रादर इट इज इनकरेक्ट टू से आ वाटर. हम आ वाटर नहीं बोल सकते क्योंकि वाटर आपका नॉन काउंटेबल नाउन है. नॉन काउंटेबल चीजों के आगे आप अ नहीं यूज कर सकते. ठीक है? आ क्योंकि सिंगुलर के लिए यूज होता है. A would or a paint नहीं बोल सकते. If we use a, we need to use a count noun with the non-count noun. Okay, all right.
सो अगर आपको ये इंग्लिश का रूल है, नाउन्स का रूल है, जैसे हमने वर्ब्स के सीखे थे। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बट अगर आप इनको डेली लाइफ में यूज करने लग जाते हो तो देयर इज नो कंफ्यूजन। इसलिए मैंने नोटबुक में नोट्स लिखवाए थे, उनको एक बार गो थ्रू कर लिया करो। दे आर जस्ट सिंपल रूल्स, रटने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट साइंस और मैथ्स के फॉर्मूले रटने हैं, बट अगर आप उनको डेली लाइफ में यूज करने लगोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है। हैव यू एवर सीन मी सेइंग कि दे इज प्लेड या दे प्लेइंग द हेयर्स? नहीं ना, क्योंकि बोलते बोलते पता चल जाता है क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई आस्क यू टू स्पीक अप एंड स्टैंड एंड स्पीक अप। ओके, ऑलराइट। अगर आपको जो नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ अगर आ यूज करना है तो आप उनके पहले कोई काउंटेबल नाउन यूज करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ। वाटर है, वाटर आपका क्या है? वाटर आपका काउंटेबल नाउन नहीं है, वाटर आपका नॉन काउंटेबल नाउन है, आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते। तो अगर आपने वाटर के साथ अ यूज करना है, अब वाटर के साथ तो अ यूज नहीं कर सकते, राइट? तो अगर वाटर के साथ अ यूज करना है, वाटर या कोई भी नॉन काउंटेबल चीज के साथ आपको अ यूज करना है, तो आप उसके पहले एक काउंटेबल नाउन लगाएंगे। जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास जो है वो काउंटेबल नाउन है जो हमने अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाया है, तो अ ग्लास ऑफ वाटर बोलेंगे, या फिर अ बकेट ऑफ वाटर। ठीक है, समझ आया? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो एक बार। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता दो मुझे, मैं अभी आई टेक अप योर प्रॉब्लम। अभी क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? ऑलराइट, ओके। सिमिलरली जैसे हम अ ग्लास ऑफ वाटर बोलेंगे, आ वाटर नहीं बोलेंगे। अगर वाटर के आगे अ यूज करना है तो फिर उसके पहले काउंट नाउन लगाओ, उसके आगे अ यूज करो। अगर जैसे तुम्हें बोलना है हेयर के आगे अ लगाना है तो तुम बोलोगे अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। स्ट्रैंड इज दिस, एक बाल, एक बाल को स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा क्या है? बाल तो तुम्हारे पास नहीं है, मैं क्या बाल दिखा रही हूँ तुम्हें? हाँ, गुड। हाँ वही, उसको स्ट्रैंड बोलते हैं। स्ट्रैंड, एक को स्ट्रैंड बोलते हैं। स्ट्रैंड इज काउंटेबल। अगर आपको बालों के आगे प्लूरल लगाना है तो यू कैन से, आप काउंटेबल नाउन लगाओगे जो है स्ट्रैंड, तो इट विल बी अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर्स नहीं होगा, बहुत मारूंगी अगर किसी ने हेयर को हेयर्स बोला तो। हेयर होता है। ठीक है, ओके, चलो, this we have done. For the plural form, we simply use the plural of the noun we added to the non-count noun. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, आपका जो नाउन है सिंगुलर अगर है तो आप उसके नॉन काउंट नाउन के लिए, देखो समरी बता देती हूँ मैं, वैसे क्लियर रहेगा तुमको समरी बता के। सिंगुलर, प्लूरल। काउंट नाउन के लिए सिंगुलर में आ यूज होता है, प्लूरल में आई एस, ई एस या एस यूज होता है। सिंगुलर ट्री, प्लूरल ट्रीज। सिंगुलर बकेट, प्लूरल बकेट्स। बट प्लूरल में कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसमें ई एस, आई एस या एस पैटर्न फॉलो नहीं होता। जैसे चाइल्ड है सिंगुलर तो उसका प्लूरल चाइल्ड नहीं होगा, उसका प्लूरल चिल्ड्रन होगा। ठीक है, वैसे ही वो था काउंट नाउन की बात। काउंट नाउन में सिंगुलर और प्लूरल। जीआईसी बची थी लानी? देखो बातें कर लो, जो करना है करो, हंसी मजाक जो भी तुम कर रहे हो, बट नोट्स बना लो। और जरा कोई एक माइक ले लो बच्चा, माइक अनम्यूट कर दिया आपका, माइक ले लो। यस मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। व्हाट गुड इज योर मॉर्निंग नेम? मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। माय नेम इज कशिश। मैम माय नेम इज कशिश तोमर। Kashish, Kashish, can you tell me the difference between singular and plural noun and what all we use in singular and plural noun? We just started it. You can even refer to your notes. जरा मुझे बताना कि हेयर का प्लूरल क्या होता है? हेयर मैम, हेयर। हेयर, हेयर हेयर। क्यों? मैम इसे गिन नहीं सकते, हाँ, इसको नॉन काउंटिंग। नॉन काउंटेबल।
ऑल राइट। एंड अगर आपको नॉन काउंटेबल जो नाउन है उसके लिए अ यूज करना है, वैसे तो आप नॉन काउंटेबल नाउन के लिए अ यूज नहीं कर सकते, बट अगर करना है तो फिर आप क्या करोगे? हाँ कशिश, व्हाट आर वी गोना डू इफ वी वांट टू यूज अ इन फ्रंट ऑफ एन नॉन काउंटेबल नाउन? व्हाट आर वी गोना डू? हम अ हेयर बोल देंगे, है ना? यस, यस मैम। अभी हमने यही पढ़ा है, अगर हम कोई नॉन काउंटेबल नाउन के आगे अगर हमें अ लगाना है तो हमें एक काउंटेबल नाउन यूज करना पड़ेगा। हम अ वाटर नहीं बोल सकते, हम अ ग्लास ऑफ वाटर बोलेंगे, हम अ बकेट ऑफ वाटर बोलेंगे, हम अ वुड नहीं बोल सकते। विल यूज अ प्लैंक ऑफ वुड। अब समझ आया? ओके, अभी नोट्स बना लो और ये चीज लिख लो। इट इज नेवर, एंड एवरीबडी कशिश सिट डाउन, इट्स ओके। It is never a water, it is a glass of water. Alright? जब भी कोई काउंटेबल नाउन है उसके आगे अ लगाना है तो हम लोग एक नॉन काउंटेबल नाउन के आगे अ लगाना है तो हमेशा एक काउंटेबल नाउन यूज होगा। इसीलिए कहीं भी आपने देखा होगा कोई भी कैन आई हैव अ वाटर नहीं बोलता है, इट्स ऑलवेज कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है? एंड कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कैन आई हैव अ पेंट, इट इज कैन आई हैव अ बकेट ऑफ पेंट, कैन आई हैव अ बॉक्स ऑफ पेंट। ऑलराइट, ओके। एंड इसका प्लूरल बहुत इजी है, अगर आपको प्लूरल बनाना है किसी भी नॉन काउंट नाउन का तो सिंपली जो उसका काउंट नाउन लगा है उसके पहले उसमें आप एस ई एस या आई ई एस ऐड कर दोगे। तो अगर आपको प्लूरल बोलना है, अगर सिंगुलर में हम क्या बोलते हैं कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, बट आप प्लूरल में क्या बोलोगे कैन आई हैव ग्लासेस ऑफ वाटर, और या फिर आप क्वांटिटी बता दोगे कैन आई हैव 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, कैन आई हैव 4 प्लैंक्स ऑफ वुड। तो आप क्वांटिटी भी बता सकते हो या फिर आप एस आई एस ई एस लगा सकते हो। ठीक है? सिंगुलर और प्लूरल में ये सेम रहेगा, बस रूल सेम है। सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल के लिए रूल सेम है, बट डिफरेंस इतना है कि अगर नॉन काउंटेबल के साथ सिंगुलर प्लूरल यूज करना है तो पहले एक काउंटेबल नाउन लगाना पड़ेगा। समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई भी लाइन समझ नहीं आई किसी को भी, ऐसा है? सबको समझ आया? जितनों को समझ आया अपना हैंड रेज करना एक बार। ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्वांटिटी कैसे पढ़नी है, कि जो भी हमने सिंगुलर फॉर्म लगाई है उसके आगे हम क्वांटिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं, 2 बैग्स, 3 बैग्स, 2 बकेट्स, 3 बकेट्स। इट्स जस्ट दैट, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू, ओके, ऑलराइट, क्वांटिटीज में क्या होता है। अभी अब तक हमने क्या पढ़ा कि सिंगुलर और प्लूरल, अगर प्लूरल में बोलना है तो हम क्वांटिटी बता सकते हैं। जैसे सिंगुलर था वाटर, अब हमें उसमें अ लगाना था तो हम, वाटर तो नॉन काउंटेबल है, हम आ वाटर नहीं बोल सकते, इसलिए हमने सिंगुलर में यूज करा कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है। अब अगर हमने आ लगाया है तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है या बहुत एविडेंट है कि एक की बात हो रही है। आ मतलब एक, आ मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक। ठीक है? अगर हम बोलते, अगर हमें क्वांटिटी पता है तो हम बोल सकते हैं कैन आई हैव 2 ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई हैव 3 ग्लास ऑफ वाटर। बट कुछ कुछ केसेस होते हैं जहां पे हमें क्वांटिटी नहीं पता, तो अगर हमें क्वांटिटी नहीं पता तो उस केस में हम बोलेंगे कैन आई हैव सम। सम मतलब थोड़ा, फ्यू मतलब भी थोड़ा, लार्ज क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, huge, few, these are some words that we use जब हमें quantity नहीं पता होती है। For example, there are some trees, ठीक है, और there is some cement, there are some bags of cement। हम बोल सकते हैं very less, very more, some, few, large, huge। ठीक है? जब हमें exact quantity नहीं पता होती तो these are some words that we can use। Alright? समझ आया? समझ आया? हैंड रेज करना अगर समझ आए तो। Okay, all right. Now we'll shift to the next topic. देखो, these are some of the examples जिनकी हमने अभी बात करी। ठीक है? Some trees, some cement. Some is थोड़ा,
If the quantity is large, we can use a lot of. For example, there is a lot of bricks. Yeah, there is a lot of water. Okay? There is a lot of water in the bucket. Yeah, there is a lot of bricks lying on the playground. There are a lot of trees. So these are the helping words जिसके लिए जो हम क्वांटिटी के लिए यूज कर सकते हैं. अगर मेरे को अगर जैसे मुझे स्क्रीन पे कोई क्लास दिख रही है और मुझे क्वांटिटी नहीं पता कि कितने बच्चे बैठे हैं, तो आई कैन से देयर आर लेस पीपल इन द क्लास और देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द क्लास, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. ठीक है? ओके, ऑलराइट. एक और चीज, छोटी सी चीज है, नोट कर लो इफ यू वांट टू नोट इट, एंड otherwise it's fine. ठीक है? When we talk about the quantity of count noun, we use there are with some and a lot of. जब हम काउंट नाउन की क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं और हमें क्वांटिटी नहीं पता है, तो हम आर वर्ड यूज करते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ बकेट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज, देयर आर सम ट्रीज. ठीक है? बट क्योंकि आपके नॉन काउंट नाउन पहले से ही सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इसीलिए हम उनके साथ देयर इज यूज करते हैं. ठीक है? देयर इज सम वाटर. समझ आया? समझ आया? हैंड रेज करो. ओके, ऑलराइट. दिस वी हैव स्टडीड. नाउ we'll go through this, and इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी. ठीक है? ये तो बहुत बेसिक चीज है, अभी हमने इसको पढ़ लिया है. We use is there to ask a question about a count noun in singular form. अभी हमने पढ़ा सिंगुलर फॉर्म काउंट नाउन है और उसकी सिंगुलर फॉर्म है, तो इज लगेगा. सिंगुलर फॉर्म के लिए इज लगता है. इज देयर अ लैडर, मतलब एक चीज की बात हो रही है. अगर प्लूरल है, प्लूरल में आर लगता है. आर देयर एनी लैडर्स, आर देयर एनी ब्रिक्स. अगर हम सिंगुलर बोलेंगे, GIC जेटी लानी. बच्चे माइक लेना प्लीज. यस मैम. बच्चे आपका, मुझे पहले तो स्कूल का नाम बताओ क्या है, मुझे यहाँ से दिख GIC पजीटी लानी. GIC पजीटी लानी. ओके, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी? देहरादून. हाँ, चलो. अगर मैं सिंगुलर में बोलती हूँ कि इज देयर एनी ब्रिक, ब्रिक मतलब ईट, इज देयर एनी ब्रिक, तो इसको मैं प्लूरल में कैसे बोलूंगी? इज देयर तो समझ आ रहा है, इज वर्ड यूज होता है सिंगुलर के लिए, अ यूज होता है सिंगुलर के लिए. यस मैम. तो अगर Yes, मैं ma'am. बोल रही हूँ इज देयर एनी ब्रिक, तो वो सिंगुलर है, इसको प्लूरल में कैसे बोलेंगे? Are आर there some bricks? एनी भी यूज कर सकते हो, पर आर यूज होगा. ठीक है? वेरी गुड. ओके, वेरी Yes, गुड. ma'am. अगर आप सिंगुलर बोल रहे हो तो आप इज यूज करोगे, आर यूज करोगे. अगर आप प्लूरल में बोल रहे हो, अगर मैं बोलती हूँ इज देयर अ चाइल्ड, मतलब क्या यहाँ कोई भी एक बच्चा है, और अगर मैं बोल रही हूँ आर देयर एनी चिल्ड्रन, तो उसका मतलब है प्लूरल. ठीक है? यही डिफरेंस है. सिंगुलर में हम इज अ यूज करते हैं, प्लूरल में हम देयर यूज करते हैं. ठीक है? आर देयर एनी ब्रिक्स, प्लूरल. आर देयर सम सीमेंट बैग्स, प्लूरल. ओके, ऑलराइट. सबको समझ आया? हैंड रेज करना. ओके, ऑलराइट. चलो. नाउ वी विल लर्न अबाउट हैव गॉट एंड हैवंट गॉट. हैवंट मतलब क्या होता है? किसी को पता है हैवंट मतलब क्या होता है? किसी को भी अपना हैंड रेज कर सकते हो जिसको पता है हैवंट मतलब क्या होता है. फजीती लाने में किसी को आता है? ओके, यस. Ma'am, Yes. haven't means have not. वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम? Vishakha Tomar. Okay, Vishakha. Yes. So as Vishakha, sit down. Thank you so much. So as Vishakha told us, haven't is have not. It is simply have not. So now we learn the use of. Let's learn to use a, some, a lot of, and any with the expressions have got and haven't got. So I'll read it for you first, and then we will go through this together. For a count noun in the singular form, we use have got a and haven't got a. For example, I have got a painting for this wall, but I haven't got a lampshade. For a count noun in the plural form, we use have got with some and a lot of. For example, they have got some paintings,
or they have got a lot of curtains for the house. We use haven't got with a lot of any, lot of and any. For example, they haven't got a lot of paintings or they haven't got any curtains. ओके सबको समझ आया? जो मैंने बोला इसको थोड़ा थोड़ा ना आप शॉर्ट फॉर्म में नोट भी कर सकते हो. अब देखो जो काउंट नाउन की सिंगुलर फॉर्म है उसके लिए वी यूज हैव गॉट अ और हैवंट गॉट अ. हम हैव गॉट या हैवंट गॉट के साथ अ यूज करते हैं आपके सिंगुलर फॉर्म में. ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में बस इतना याद रखो, मोस्टली इज अ जो सिंगुलर टर्म्स है ना, अ सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, वो आपके यूज होते हैं. तो अगर हम काउंट नाउन की सिंगुलर फॉर्म के लिए हैव गॉट अ या हैवंट गॉट अ यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट अ पेंटिंग एंड आई हैवंट गॉट मतलब आई हैव नॉट गॉट द लैम्प शेड. ठीक है. For a count noun in the plural form, we use have got with some and a lot of. वहां पे सिंगुलर नाउन में हम have got और haven't got के साथ a यूज करते हैं. प्लूरल नाउन में हम have got या haven't got के साथ some या फिर a lot of यूज करते हैं. अपने नोटबुक्स में नोट कर लो, फॉर सिंगुलर नाउन have got and haven't got के साथ we use a प्लस करके a लिख लो. For example, I have got a painting. I have got a painting and I have got a lampshade. वहीं अगर प्लूरल नाउन होता है बच्चे तो आप have got या have not got के साथ a lot या फिर some यूज करते हो. some, a lot ये हमने क्वांटिटीज में भी पढ़ा था. ये आपकी प्लूरल क्वांटिटीज को दर्शाता है या ये आपकी प्लूरल क्वांटिटीज के बारे में बताता है. क्वांटिटीज में हमने अ और सम लॉट एनी वगैरह पढ़ा था आपके सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस मार्क करने को. ठीक है, तो अगर आप प्लूरल में बोलते हो तो आप सम या अ लॉट ऑफ वर्ड यूज करोगे क्वांटिटी दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गॉट सम पेंटिंग्स और दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ कर्टेन्स फॉर द हाउस. सम मतलब कुछ, थोड़े, तो उसका मतलब कि प्लूरल फॉर्म में है. और लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे, मतलब एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है. ठीक है, सबको समझ आया? हैंड रेज करो. ओके, ऑलराइट. कोई भी डाउट होगा तो आप अपने चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो. और ये चीज एक नोट कर लो, वी डू नॉट यूज हैव गॉट विद एनी. ऐसे नहीं बोल सकते कि वी हैव गॉट एनी पेंटिंग्स. वहां पे हम सिंगुलर फॉर्म ही यूज करते हैं जैसे सिखाया था. ठीक है, दिस इज नॉट यूज्ड मच बट दीज आर द रूल्स. Now we will talk about the non-countable noun and this will be the end of the session. ये last चीज है जो हम पढ़ रहे हैं. उसके बाद हमारे nouns and the words we use in noun will come to an end. ठीक है, अब देखो, we use have got with some and a lot of. have got को हम हमेशा यूज करते हैं some और lot of के साथ. we have got some paintings. हम ऐसे नहीं बोलते, पहले हमने पढ़ा ना, हम ऐसे नहीं बोलते we have got any paintings. any is used with we have not got any paintings. ठीक है, अगर not यूज करते हैं तब any आता है. अगर आप have got यूज कर रहे हो तो उसको आप some and lot of के साथ यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, I have got some furniture और I have got a lot of paint. बेसिक रूल है, आप have got को some and a lot of के साथ यूज करते हो. आप haven't got को with a lot of and any के साथ यूज करते हो. देखो, I know बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट इसके आप जितने सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा सही है. आपको ये एग्जाम्पल से ही आएगा. दैट्स व्हाई इसमें सब जगह एग्जाम्पल्स हैं. अगर आप एक एक एग्जाम्पल भी लिख लोगे, और ये बेसिक रूल्स है, ऐसा नहीं है कि आपको इनको रटना है, बट ये बेसिक रूल्स है. आप जब जब बोलोगे ना तो बस एक बार ये वो करना, मतलब टेक दिस इन कंसिडरेशन कि आपको haven't got के साथ a lot and any यूज करना है. we haven't got, for example, we haven't got a lot of tables in the class या we have not got any tables. और अगर आप बोलोगे we have got तो आप बोलोगे we have got some of the chairs या we have got a lot. बेसिकली some and a lot of आपके have got के साथ यूज हो रहा है, which is positive.
अ लॉट या एनी आपका हैवंट गॉट के साथ यूज हो रहा है, विच इज नेगेटिव। ठीक है, अब यहां देखो, वी डू नॉट यूज हैव गॉट विथ एनी, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। हम ऐसा नहीं बोल सकते वी हैव गॉट एनी फर्नीचर, उसका मतलब हो जाएगा हम कोई फर्नीचर लाए, ऐसा नहीं बोलना है। वी हैव नॉट गॉट एनी फर्नीचर हो सकता है, वी हैव गॉट एनी फर्नीचर नहीं हो सकता। और हैवेंट गॉट को हम सम के साथ यूज नहीं करते। ठीक है, दे हैव नॉट गॉट सम पेंट नहीं बोल सकते, वो नहीं लाए कुछ पेंट हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग इंग्लिश। गॉट इट? जीआईसी जयंती कोट, बच्चे माइक लेना। And this marks the end of your session, by the way, for today. This ends your nouns. जयंती कोट, माइक ले लो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून हो गया Good बच्चा। afternoon, मुझे बताओ हम लोग हैव गॉट के साथ क्या यूज करते हैं? ma'am. Have not got. सॉरी, थोड़ा तेज बोलो। सम या एनी का प्रयोग करेंगे। हाँ जी, सम बच्चे सम का या फिर अ लॉट ऑफ का हम यूज करेंगे। वी यूज हैव गॉट विद सम एंड अ लॉट ऑफ। ठीक है, अगर मैं इसका सेंटेंस दिखाऊं तो आई हैव गॉट सम फर्नीचर, ऐसा नहीं होगा आई हैव गॉट एनी फर्नीचर, ऐसा नहीं यूज करेंगे। हैव गॉट के साथ एनी यूज नहीं करते हैं। हेलो जीआईसी थानाचुली, आज माइक चल रहा है, माइक टेस्ट कर लो एक बार, माइक ले लो, सब उनको माइक कर लो। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। बच्चे समझ नहीं आया ना तो आप ना बोल सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगी आप। यस मैम। मैम ये हैव गॉट और हैवंट गॉट का समझ में नहीं आया। हैव गॉट और हैवंट गॉट का क्या समझ नहीं आया? मैम ये लॉट ऑफ और एनी कंफ्यूजन हो रहा थोड़ा। कंफ्यूजन तो हो रहा है, देखो आई नो कि कंफ्यूजन होगा, और आपके ना बहुत सारे रूल्स हो गए हैं। देखो, अगर मैं आपको रूल्स नहीं पढ़ाऊंगी ना तो फिर नहीं आएगा। और कुछ कुछ चीजें, अब देखो, अगर आप मुझे बोलो कि वॉवल्स जो है ए ई आई ओ यू अभी हमने पढ़ा था ना, उसके आगे एन यूज होता है, तो वो क्यों यूज होता है किसी को नहीं पता। ठीक है, किसी को ये भी नहीं पता रूल्स कौन बना रहा है बैठ के। पहले हम हेयर्स बोलते थे, अब हम हेयर बोलते हैं, किसी को नहीं पता ये भी क्यों हो रहा है। बट अगर ये रूल्स नहीं पढ़ोगे ना, इसीलिए इंग्लिश बहुत ज्यादा, जब इंग्लिश याद है स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं पास्ट प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस पार्ट पार्टिसिपल, कभी किसी को क्लियर नहीं होता, सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख के आ जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम होती है कि उस टाइम हम स्किप कर देते हैं, और वो पढ़ने जरूरी है क्योंकि रूल्स है। अब देखो, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स पढ़े थे, कहीं कहीं पे ईडी लगा के काम हो जाता है, कहीं कहीं पे नहीं होता, रूल है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बट ये रूल्स, और ना ये रूल्स ऐसे नहीं है कि आपको ये रूल्स रटने हैं तब आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। अगर आप इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर दोगे ना, अगर आप थोड़ा भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करोगे, तो देखो, अगर आप वो ये यूज करोगे आई हैव गॉट सम फर्नीचर, अगर देखो अब आप घर जाते हो घर और आप ये बात किसी से बोलते हो या अपने भाई बहनों से कन्वर्स करते हो, मार्केट से आने के बाद अगर आप बोल रहे हो आई हैव गॉट सम फ्रूट्स, ठीक है, सपोज यू यूज दिस वर्ड आई हैव गॉट सम फ्रूट्स, तो आपके एक बार ना दिमाग में रहेगा कि आपको आई हैव गॉट सम फ्रूट्स बोलना है, आप ये नहीं बोलोगे आई हैव गॉट एनी फ्रूट। ठीक है, आप मुझे बताओ आपको सुनने में क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई हैव गॉट सम फ्रूट्स या आई हैव गॉट एनी फ्रूट्स? बताओ, हाँ मुझे बताओ क्या सुनने में ज्यादा आपको कन्वीनियंट लग रहा है, आई हैव गॉट सम फ्रूट्स या आई हैव गॉट एनी फ्रूट्स? मैम आई हैव गॉट सम फ्रूट्स। एग्जैक्टली, सो देखो इंग्लिश डिपेंड्स ऑन ये बहुत, मतलब ना वैसे तो इसे तुक्का भिड़ाना कहते हैं, और इसको आप तभी यूज कर सकते हो। देखो, बोलते हैं ना कि आप तुक्का भी तभी भिड़ा सकते हो जब आपको नॉलेज है। अगर आपको, अगर 4 चॉइसेस में आपको दो, आपका क्या नाम है? कोमल बेस्ट। कोमल। कोमल में अगर आपको 4 चॉइसेस दूं ना, तो आप उसमें तुक्का भी तभी लगा सकते हो जब आपको ये पता है कि 3 चॉइसेस गलत है ना? यस अगर यस आपको मैम। कुछ भी नहीं पता है तो आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। तो इंग्लिश में दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि क्या बोलने में अच्छा लग रहा है, और आप क्या बोलने में अच्छा लग रहा है ये भी तभी पता लगा सकते हो जब आपको पता है कि क्या नहीं बोलना है ना?
तो अगर आप ऐसे बोलते हो आई हैव गॉट सम फ्रूट, तो आपको पता है वो बोलने में अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कि एनी नहीं यूज करते। एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा रूल्स है और आपको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है पढ़ने में। हम लोग क्या करेंगे, हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं ना आपको नोट्स बना के दे दूंगी वर्कशीट में, ठीक है। बहुत छोटा छोटा मैं लिख दूंगी, जैसे इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो क्या होता है ना, मैं आपको ना एक वर्क फ्रेम बना के दे दूंगी। कल हम ना नोटबुक में इस पूरे की एक्सरसाइज कर लेंगे मंडे को, कि कौन से वर्ड्स के साथ क्या रूल लगना है ये, और आपके पास वो छोटे छोटे नोट्स रहेंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको सारी, जैसे ये था सिंगुलर में हम हैव गॉट के साथ सम एंड लॉट ऑफ यूज करते हैं, और उसका एक एग्जांपल दे दूंगी, छोटा 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 लिख के आप उसको एक ऐसे वर्क टेबल बना लेना, एक चार्ट बना लेना, तो आपको ना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये रटना है, आप वर्ड फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो हम लोग वो खोले बहुत इजी हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, मंडे को हम लोग इसके बहुत सारे वर्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। ओके, ओके मैम। वैसे समझ आएगा, यस मैम। ठीक है। ओके, ऑल राइट देन एवरीवन, दिस मार्क्स द एंड ऑफ द सेशन। आई एम सो सॉरी, सैटरडे है, वीकेंड है और आप सब यहाँ पे हो। संडे को मजे करना, एंड संडे को आए जो भी करोगे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करना, क्योंकि मैं क्लास में पूछूंगी कि क्या किया, ठीक है। एंड यू हैव टू टेल मी एवरीथिंग इन इंग्लिश। ओके एवरीवन, हैंड रेस करो, समझ आया? गुड, अब जाना कुछ अच्छा खाना या कुछ इंटरेस्टिंग करना ताकि तुम क्लास में बता पाओ। ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड आफ्टरनून।